हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जो अपना द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट है वो आज करेंगे हम। और इसका जो टाइटल है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। एंड दिस लेसन इज़ अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ही वाज ए रिनाउंड वेरी पॉपुलर शहनाई प्लेयर इन इंडिया. He is a legend because he did something which has historical significance. He played the Shehnai on the day India got independence, that is 15th August 1947, at the Red Fort before the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, gave his speech. Before that, Bismillah Khan played the Shehnai in order to signify something auspicious. Something auspicious for the whole country was about to happen. India was about to get freedom, and so on that occasion, Bismillah Khan played the Shehnai, and so he is a legend. So, in this way, we come to know that why Bismillah Khan was so popular. And there are certain points we can also discuss. And first of all, we'll come to know what was Shehnai earlier known as. Earlier, Shehnai was known as Pungi, and Pungi, the Pungi mean to say produced shrill and unpleasant sound when it was played, and that's why Emperor Aurangzeb banned it, and it was banned to be played in Royal Palace because it was not considered ear soothing. That's why it was banned. And Shehnai replaced Pungi, which had a shrill, unpleasant sound. Pungi's tonal quality was improved by a barber, hence it was named as Shehnai because it was first played in Shah's chamber and it was played by a Nai, that is barber. That's why it was given a new name, Shehnai. Ustad Bismillah Khan is a Shehnai maestro. Bismillah Khan took to music early in life when he was 3 years old in the company of his maternal uncle. He used to sing Chet in Bihariji temple and practicing Shehnai in Vishnu temple and Mangla Maya temple of Varanasi. His life is a source of simplicity and communal harmony. Bismillah Khan got his big break with the opening of All India Radio in Lucknow in 1938. He also played Shehnai on 15th August 1947 from Red Fort in presence of Pandit Nehru. Bismillah Khan gave many memorable performances both in India and abroad. He also gave music in two movies, Goons Uthi Shehnai and Sandhi Apna. He was so proud of his motherland, India, Banaras, and the Holy Ganga that he refused an offer to be the head of Shehnai School in USA. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. So, in this way, we come to know that Bismillah Khan was very popular Shehnai player not only in our country but in foreign countries as well. Okay, so let's start the story of this lesson. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pongi. So here we come to know that Emperor Aurangzeb ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको पुंगी कहा जाता था उसको रॉयल रेजिडेंस में, रॉयल कोर्ट्स में, रॉयल पैलेसेस में प्ले करने से बैन कर दिया उसको. क्यों कर दिया? फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो साउंड थी दैट वाज अनप्लेजेंट. अनप्लेजेंट का मतलब जो सुनने में अच्छी नहीं लगती थी और काफ़ी तीखी आवाज़ थी इसकी. श्रिल का मतलब टेरिबल थी. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. और पुंगी जो है रीडेड नॉइस मेकर्स का एक उनके ग्रुप को जेनरिक नेम दिया गया था पुंगी, यानी कि जितने भी रीडेड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको उनका जो एक ग्रुप था उसको एक नाम दिया गया पुंगी.
Few had thought that it would one day be revived. बहुत कम लोगों ने सोचा था कि एक दिन आएगा जब इसको भी एक नया जीवन मिलेगा, यानी कि पुंगी की जो क्वालिटी है उसको जो है इम्प्रूव किया जाएगा। ऐसा बहुत कम लोगों ने सोचा था। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। और एक नाई था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से था और जिसका रॉयल पैलेस के अंदर डायरेक्ट एक्सेस थी, पहुंच थी, यानी कि रॉयल पैलेस के अंदर उसका आना जाना था। उसने डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, और उसने पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिसीजन लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। और इसके लिए उसने एक पाइप लिया जो कि नेचुरली हॉलो स्टेम था, जो कि लंबा भी था और ब्रॉडर था, किसकी बजाय, पुंगी की बजाय। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने पाइप के बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर 7 होल्स बनाए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। और जब इसके कुछ होल्स को दबा करके रखा गया और कुछ को ओपन के रखा गया तो इसमें से मेलोडियस साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। He played the musical instrument before royalty and everyone was impressed। उसने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने प्ले किया। रॉयल्टी का मतलब यहाँ पर रॉयल फैमिलीज से है, तो उनके सामने प्ले किया तो वो हर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और ये इंस्ट्रूमेंट इतना डिफरेंट था पुंगी से कि इसको एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स and was played by a Nai barber, the instrument was named the शहनाई। चूँकि इसको पहली बार शाह के चैम्बर्स में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा इसको प्ले किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया शहनाई। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। क्योंकि शहनाई की जो साउंड है उसको ऑस्पिशियस माना जाने लगा, और यही कारण है कि इसको टेम्पल्स में प्ले अभी भी किया जाता है, और ये नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में एक बहुत ही इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है, यानी कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन wedding। In the past, the Shehnai was part of the Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। पास्ट में शहनाई को जो ट्रेडिशनल ग्रुप था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसका ही एक अंग माना जाता था, उसका एक पार्ट माना जाता था शहनाई को भी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अभी हाल ही तक भी इसको टेम्पल्स एंड वेडिंग्स में ही केवल इसको प्ले किया जाता था, बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसको, इस इंस्ट्रूमेंट को यानी कि शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमरान in बिहार। और जब 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान तो बिहार के डुमरान स्टेट, जो प्राचीन स्टेट है, वहाँ पर एक तालाब के पास में गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari temple to sing the Bhojpuri Chet, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। और बचपन में जो बिस्मिल्लाह खान हैं वो पास ही के बिहारी जी टेम्पल में जाते थे भोजपुरी चैत्य गाने के लिए, और उनको जब उनका गाना
कंप्लीट होता था तो उसके बाद में वहाँ के जो स्थानीय महाराज थे वो उनको 1.25 किलो का बड़ा सा लड्डू उनको इनाम के रूप में देते थे। दिस happened 8 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। और ये कहानी 8 इयर्स पहले की है और वही छोटा सा बच्चा उसने इतनी लंबी यात्रा तय की कि उसने भारत का सर्वोच्च जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्ना उसको भी उनको मिला। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar और 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खान बिहार के म्यूजिशियंस का जाना माना जो परिवार था उनसे बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर राजा के कोर्ट के अंदर शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके फादर पैगम्बर बख्श और दूसरे जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर्स थे। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras। जब ये नौजवान छोटा सा बच्चा पहले से इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर म्यूज़िक को अपना लिया था, यानी कि अपने बचपन से ही ये म्यूज़िक को अपना लेता है। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai। और जब when Bismillah Khan was 3 years old, his mother took him to his maternal uncle's house। वाराणसी, अब फ़िलहाल जो है वाराणसी में है ये स्थान, पहले बनारस में था। तो इनकी मदर इनको इनके मामा के घर लेके जाती है और वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल्स को तो वहाँ पर वो शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देख कर के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। और बिस्मिल्लाह खान ने बहुत जल्दी अली बख्श जो उनके अंकल थे उनका साथ देना, उनके साथ जाना स्टार्ट कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर अली बख्श को शहनाई बजाने के लिए काम पे रखा गया था, वहाँ पर उनकी वहाँ पर ड्यूटी थी। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो थे वहाँ पर शहनाई प्ले करते थे और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर मंत्र मुग्ध होकर के घंटों बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने भी ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने के लिए लेसन्स लेना स्टार्ट किया और वो सारा दिन बैठ कर के रियाज़ करते थे। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। और आने वाले कुछ वर्षों में जो बालाजी का टेम्पल था, मंगला मैया का टेम्पल था और गंगा का जो किनारा था, वो इस उभरते हुए जो इस नौजवान अप्रेंटिस का बहुत पसंदीदा जगह बन गई थी, जहाँ पर वो एकांत में बैठ कर के रियाज़ कर सकता था, प्रैक्टिस करता था। सॉलिट्यूड मीन्स होता है लोनलीनेस। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai। और गंगा का बहता हुआ पानी इनको जो है इंस्पायर करता था कुछ रागास को इन्वेंट करने के लिए और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि पहले शहनाई की रेंज से बाहर समझे जाते थे। ऐसा माना जाता था कि रागों का शहनाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। बिस्मिल्लाह खान की लगन और मेहनत ने ये रंग लेके आती है और आखिरकार क्लासिकल प्लेटफॉर्म मिलता है शहनाई प्लेइंग को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला हम जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Have a nice day.